السلام علیکم ساتھیوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ساتھیوں، آج ہم UGC نیٹ GRF کی کلاس میں پریکٹس سیٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر ہم آج پرشنوں پر آتے ہیں، سوالات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہے وہ کیا ہے۔ پہلا سوال آپ کا ہے، خدا کی بستی میں بیمہ کرانے والا ایجنٹ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خدا کی بستی ایک ناول ہے۔ اس ناول میں جو بیمہ کرانے والا ایجنٹ ہے وہ کون ہے؟ تو ساتھیوں، اس کا جو صحیح جواب ہے، ہم نے پہلے ہی ٹک لگا رکھا ہے اس کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 یعنی کالے صاحب خدا کی بستی نامی ناول میں انہوں نے بیمہ کرانے والا ایجنٹ ان کو مانا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، انو نوشا کا رشتہ میں کیا لگتا ہے؟ انو جو ہے یہ نوشا کا رشتے میں کیا لگتا ہے؟ تو آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ یہ سوالات اکٹھے کیے گئے ہیں۔ تو ساتھیوں، انو جو ہے یہ نوشا کا رشتے میں چھوٹا بھائی لگتا ہے۔ سوال پہلے ہی سے حل شدہ ہے۔ اگلا سوال یعنی تیسرا سوال ہے، سلطانہ کس کی بہن ہے؟ تو سلطانہ کس کی بہن ہے؟ نوشا کی بہن ہے، یعنی آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، گل خان کس ناول کا کردار ہے؟ تو گل خان جو ہے یہ خدا کی بستی جو ناول ہے اسی کا ایک کردار ہے، گل خان۔ اگلا سوال ہے، عبداللہ کس ناول کا کردار ہے؟ تو عبداللہ جو ہے یہ بھی خدا کی بستی کا ایک کردار ہے، یعنی گل خان، عبداللہ یہ سب خدا کی بستی نامی جو ناول ہے اسی کے کردار ہیں۔ اگلا سوال ہے، ناول خدا کی بستی میں نیاز کس چیز کا کاروبار کرتا ہے؟ تو دوستو، نیاز جو ہے یہ بھی ایک کردار ہے، ناول جو ہے خدا کی بستی میں اس کا کاروبار جو تھا نیاز کا، اس کا کباڑی کا کاروبار تھا، اس لیے آپشن نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، سلمان کس ناول کا کردار ہے؟ تو سلمان جو ہے یعنی سوال نمبر 7 آپ کو بتانا ہے۔ تو سلمان، گل خان اور نیاز وغیرہ یہ سب کس کے کردار ہیں؟ خدا کی بستی نامی ناول کے۔ تو سلمان یہ بھی جو ہے خدا کی بستی کا کردار ہے۔ تو دیکھیے، نیاز، سلمان، عبداللہ، گل خان یہ سب کے سب جو ہے خدا کی بستی جو آپ کے نصاب میں ناول شامل ہے اسی کے کردار ہیں۔ 8واں سوال ہے، علی احمد کس ناول کا کردار ہے؟ تو علی احمد یہ بھی آپ کے خدا کی بستی نامی جو ناول ہے اسی کا ایک کردار ہے، یعنی آپشن نمبر 3 بالکل اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، ناول خدا کی بستی میں فلک پیما تنظیم کی نوعیت کیا تھی؟ ایک تنظیم تھی، ایک جو ہے کمیٹی تھی، ایک جماعت تھی، فلک پیما نام کی کہہ رہے ہیں، اس کی نوعیت کی تھی کیا تھی؟ یعنی کس قسم کی یہ تنظیم اور جماعت تھی؟ سیاسی تھی، سماجی تھی یا کچھ اور تھی؟ تو دوستو، یہ جو ہے خدا کی بستی نامی ناول میں فلک پیما جو تنظیم ہے یہ تھی آپ کی کون سی، کس نوعیت کی تنظیم؟ سماجی، یعنی آپشن نمبر 2 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، ناول خدا کی بستی میں سلطانہ کا اصلی شوہر کون ہے؟ تو ناول خدا کی بستی میں سلطانہ کا جو اصلی شوہر ہے وہ کون ہے؟ علی احمد، یعنی آپشن نمبر 2 بالکل صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، رخشندہ کس کی بیوی تھی؟ یہ سب خدا کی بستی نامی ناول کے کردار ہیں، آپ یاد رکھیے گا، یہ نام بہت اہم ہے، کردار پوچھے جاتے ہیں۔ تو رخشندہ کس کی بیوی تھی؟ رخشندہ جو تھی یہ سلمان کی بیوی تھی، اس لیے آپشن نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہوگا، اور رخشندہ کا معنی ہوتا ہے چمکنے والا۔ اگلا سوال ہے، سب سے پہلے گلزار نسیم کے قصہ کو کس نے لکھا؟ یعنی گلزار نسیم جو پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے کہہ رہے ہیں، اس کے قصے کو سب سے پہلے کس نے لکھا؟ تو دوستو، اس کو لکھا تھا عزت اللہ بنگالی نے،
यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निहाल चंद लाहौरी ने किसकी फरमाइश पर उर्दू नसर में मजहब इश्क को लिखा? तो आप इस सवाल से आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये कि मजहब इश्क किसने लिखा, तो मजहब इश्क लिखा है निहाल चंद लाहौरी ने। अब पूछा जा रहा है किसकी फरमाइश पर इन्होंने लिखा था। तो दोस्तों इन्होंने मिस्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखा था, जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में शोबे हिंदुस्तानी यानी उर्दू के जो है सदर थे। अगला सवाल है, रेहानुद्दीन ख़ान ने गुलज़ार नसीम के क़िस्सा को किस नाम से मंजूम किया? गुलज़ार नसीम के क़िस्सा को किसने मंजूम किया, ये भी पूछा जा सकता है। तो रेहानुद्दीन ने उसको मंजूम किया था, यानी नज़्म की शक्ल में उसको लिखा था। अब कह रहे हैं किस नाम से लिखा, यानी उसका नाम क्या रखा? तो दोस्तों इसका नाम इन्होंने रखा था ख़याबां, ख़याबां। अगला सवाल है, गुलज़ार नसीम की इशाअत कब हुई, यानी इसका प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1844 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, चकबस्त ने गुलज़ार नसीम को कब मुरत्तब किया? पंडित ब्रजनारायण चकबस्त ने गुलज़ार नसीम को एक बार मुरत्तब किया था। पूछा जा रहा है किस सन में उन्होंने इसको मुरत्तब किया था। तो सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी 1905 में। अगला सवाल है, ताजुल मुलूक कौन सा बेटा था, यानी पहला था, दूसरा था, चौथा था, पांचवा था या तीसरा था? तो दोस्तों ताजुल मुलूक जो था वो पांचवा बेटा था। कौन सा? पांचवा बेटा। यानी सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, गुल बकावली ने ख़त किस परी को दिया था? जो गुल बकावली था उसने कह रहे हैं ख़त जो दिया था किस परी को दिया था? तो दोस्तों गुल बकावली ने जो ख़त दिया था वो सुमन परी को दिया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बकावली की माँ का नाम क्या था? बकावली की माँ का नाम क्या था? हसीना, जमीला, चमेली, उम्मे गुल। तो दोस्तों उसकी माँ का जो नाम था वो था जमीला, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, तोता यानी ताजुल मुलूक कौन सा फल खाकर इंसान बना था? लाल रंग का, पीला रंग का, हरा का या कच्चा? तो दोस्तों लाल फल को ताजुल मुलूक मुस्तर जो था उसने वो फल खाकर जब तोता बना था, तोते से फिर वो इंसान बना था। तो कौन सा फल खाया था? लाल रंग का। अगला सवाल है, फिरदौस के बादशाह मुजफ्फर की बेटी का नाम क्या था? फिरदौस के बादशाह मुजफ्फर की बेटी का नाम क्या था? पूछा जा सकता है फिरदौस के बादशाह का क्या नाम था? तो मुजफ्फर की बेटी का क्या नाम था? तो रूह अफ़ज़ा नाम था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, रूह अफ़ज़ा और बकावली का आपस में क्या रिश्ता था? तो रूह अफ़ज़ा और बकावली जो थे ये चचाज़ाद भाई बहन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम क्या था? अभी आपने पढ़ा कि फिरदौस के जो बादशाह मुजफ्फ़र थे उनकी बेटी का नाम रूह अफ़ज़ा था। तो रूह अफ़ज़ा की माँ का क्या नाम था? दोस्तों उनकी माँ का नाम जो था वो था हसीना। क्या था? हसीना। नहीं, उनकी माँ का नाम था हुस्न आरा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कुल्लियात शाही में क़साइद की तादाद कितनी है? कुल्लियात शाही पूछा जा रहा है, इसमें कुल कितने कसीदे हैं? तो दोस्तों इसमें कुल 6 कसीदे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अलीदाद किस महल का कसीदा है? अलीदाद जो है ये किस महल का अलीदाद महल किसका कसीदा है, यानी ये कसीदा किसने तहरीर किया है, किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है अली आदिल शाह सानी,
दूसरा है मोहम्मद आदिल शाह सानी, तीसरा इब्राहिम आदिल शाह, चौथा है कुली कुतुब शाह। तो सवाल नंबर 25 का जवाब जो सही है वो है अली आदिल शाह सानी, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कसीदा चार दुर्वेश, कसीदा 4 दर 4 किसका कसीदा है? एक कसीदा है 4 दर 4, कह रहे हैं किसका कसीदा है? तो सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी अली आदिल शाह सानी का एक कसीदा है। अब पूछा जा रहा है, अभी पूछा गया था कुल्लियात शाही में कितने कसीदे थे? तो कुल्लियात शाही में कुल 6 कसीदे थे। अब पूछा जा रहा है कितनी मसनवियाँ हैं कुल्लियात शाही में, 1, 2, 4, 5 या 3? तो कुल्लियात शाही में कुल जो है 3 मसनवियाँ हैं। कितनी? 3, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है उस्ताद आलम किसको कहा गया? तो जानते हैं आप उस्ताद आलम जो है ये अली आदिल शाह सानी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब इसका है। अली आदिल शाह सानी को उस्ताद आलम कहा जाता है और इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहा जाता है। तो अगला सवाल है जगत गुरु किसको कहा गया है? तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब है वह है इब्राहिम आदिल शाह सानी, इब्राहिम आदिल शाह सानी, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है लाला कृपा शंकर जी और अकबर किस मजमून के किरदार हैं? सवाल नंबर 30 का जवाब दीजिए। तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। अगला सवाल है मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं, ये शेर किस मजमून से लिया गया है? शेर है मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं, ये शेर किस मजमून से लिया गया है? हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, कुत्ते, मैं एक मियाँ हूँ। सवाल नंबर 31 का आप जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। अगला सवाल है मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता? मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, मज़कूरा शेर किस मजमून से माखूज़ है? माखूज़, ये माखूज़ हो गया है माखूज़ है, यानी लिया गया है, किससे इसको मुक़्तबस किया गया है। तो सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कुत्ते एक मजमून है उससे ये लिया गया है। ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है रोशन आरा, पंडित, मिर्ज़ा साहब, अमजद यानी एक नौकर किस मजमून के किरदार हैं? सवाल नंबर 33 का आपको जवाब देना है। चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी मैं एक मियाँ हूँ। अगला सवाल है हाली की रुबाई का ज़िक्र किस मजमून में है? सवाल नंबर 34, ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए। चलिए इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर 3, यानी मरीदपुर का पीर। अगला सवाल है इन दिलीब मिल के करे आहो जारियाँ, तो गुलहाए पुकार में चिल्लाऊँ हाय दिल। शायर कह रहा है कि ए इन दिलीब आओ मिल कर के हम आहोजारी करें, आओ हम दोनों रोएं, तुम हाय गुल कह के पुकारो, यानी आपको फूल की ज़रूरत है तो आप हाय दिल कह के पुकारो, और मैं जो है हाय दिल कहूँ और आप हाय गुल कहो, यानी आप फूल के ऊपर रो और मैं दिल को कह करके रोऊँ। कह रहे हैं ये मिसरा किस मजमून से लिया गया है? हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, कुत्ते और मुरीदपुर का पीर। तो सवाल नंबर 35 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी मुरीदपुर का पीर। अगला सवाल है मुलाजिम और अजनबी किस मजमून के किरदार हैं? सवाल नंबर 36,
کا जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी अंजाम बखैर, अंजाम बखैर। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए सवाल को थोड़ा सा तेज़ी के साथ हल करते हैं क्योंकि 100 सवाल हमको हल करने हैं। चलिए सवाल नंबर 37 है, मिर्ज़ा साहब किसका किरदार है? मिर्ज़ा साहब किसका किरदार है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है यानी सिनेमा का इश्क। अगला सवाल है, मिर्ज़ा साहब और खुदा बख्श किसके किरदार हैं? तो दोस्तों मिर्ज़ा साहब और खुदा बख्श जो हैं ये सब किरदार हैं सिनेमा का इश्क के, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रुख रोशन के आगे शम्मा रख कर वो ये कहते हैं इधर जाता है देखें या उधर आता है परवाना। रुख रोशन के आगे शम्मा रख कर वो ये कहते हैं इधर जाता है देखें या इधर आता है परवाना। कह रहे हैं उधर जाता है देखें या इधर आता है परवाना। मज़कूरा शेर कहाँ से लिया गया है? सवाल नंबर 39 जो सही जवाब है वह है लाहौर का जोग्राफिया। क्या है? लाहौर का जोग्राफिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, लाहौर का जोग्राफिया में कितने किस्म के तलबा का ज़िक्र है? सवाल नंबर 40 का जो सही जवाब है वो भी है ऑप्शन नंबर 3 यानी 4 किस्म के तलबा का ज़िक्र इसमें किया गया है। बेनज़ीर को किस बरस से ख़तरा बताया गया था? बेनज़ीर, बदर मुनीर वग़ैरह जो हैं ये किरदार हैं, आप जानते हैं। तो बेनज़ीर को किस बरस से, किस साल से ख़तरा बताया गया था? सवाल नंबर 41 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी 12वें बरस से उसको ख़तरा बताया गया था। अगला सवाल है, मारूख परी को बेनज़ीर और बदर मुनीर की इश्क की दास्तान किसने बताई थी? तो दोस्तों इसकी जो दास्तान थी वो एक देव ने बताई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बदर मुनीर के बाप का नाम क्या था? तो बदर मुनीर के जो बाप का नाम था वो था मशऊद शाह, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, बेनज़ीर किसका बेटा था? तो बेनज़ीर जो था ये मलिक शाह का बेटा था, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, बेनज़ीर और बदर मुनीर का कितनी बार निकाह हुआ? तो दोस्तों इनका 2 बार निकाह हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, फ़िरोज़ किस पर आशिक़ हो जाता है? तो आप जानते होंगे कि फ़िरोज़ किस पर आशिक़ हो जाता है, नाम बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, नजमुन्निसा, यानी फ़िरोज़ जो आशिक़ होता है वो नजमुन्निसा पर आशिक़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। अगला सवाल है, सिहरुल बयान का किस्सा कब लिखा गया था? सवाल नंबर 47 का आपको जवाब देना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी 1199 हिजरी में। अगला सवाल है, सिहरुल बयान का मुक़द्दमा किसने लिखा था? तो सिहरुल बयान का मुक़द्दमा जो लिखा था वो लिखा था मीर शेर अली अफ़सोस ने। अगला सवाल है, अफ़सोस ने सिहरुल बयान को अपने मुक़द्दमा के साथ कब शाये किया? तो दोस्तों 1805 ईस्वी में इन्होंने अपने मुक़द्दमे के साथ शाये किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। ख्वाजा अहमद अब्बास कब पैदा हुए थे? ख्वाजा अहमद अब्बास कब पैदा हुए थे? सवाल नंबर 50 देखिए, तो 50 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी 1914। अगला सवाल है, ख्वाजा अहमद अब्बास के वालिद का नाम क्या था? तो ख्वाजा अहमद अब्बास के वालिद का नाम था ख्वाजा ग़ुलामुस्सिबतैन। क्या था? ख्वाजा ग़ुलामुस्सिबतैन, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ख्वाजा अहमद अब्बास की माँ का नाम क्या था? तो दोस्तों उनकी माँ का नाम था मसरूरा खातून, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, अलीगढ़ मेल किसने जारी किया था? अलीगढ़ मेल जो है ख्वाजा अहमद अब्बास ने जारी किया था। अगला सवाल है, ख्वाजा अहमद अब्बास का अव्वलीन अफसाना कौन था?
तो ख्वाजा अहमद अब्बास का सबसे पहला अफसाना जो था वो अबाबील था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। अगला सवाल है ख्वाजा अहमद अब्बास का अव्वलीन अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो दोस्तों इनका सबसे पहला जो है अफसानवी मजमुआ एक लड़की है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला सवाल है ख्वाजा अहमद अब्बास का अव्वलीन ड्रामा कौन सा है। तो ख्वाजा अहमद अब्बास का जो सबसे पहला ड्रामा है वो है ज़ुबैदा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है सरदार जी किस का अफसाना है। तो सरदार जी जो है ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है साथियों सरगम नामी रसाला किसने जारी किया। सरगम नामी रसाला किसने जारी किया। सवाल नंबर 58 है। तो दोस्तों ख्वाजा अहमद अब्बास ने सरगम नामी रसाला जारी किया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। अगला सवाल है इनकलाब किसका नावल है। तो इनकलाब जो है ये ख्वाजा अहमद अब्बास का नावल है, आप जानते होंगे, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इनकलाब कब लिखा गया। तो इनकलाब जो है 1975 में लिखा गया था, आपको मालूम होना चाहिए, इसे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ख्वाजा अहमद अब्बास का इंतकाल कब हुआ। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, चलिए 1987 में इनका इंतकाल हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है एक लड़की कब शाये हुआ। एक लड़की जो है इसकी इशाअत किस सन में हुई। तो सवाल नंबर 62 का जो सही जवाब है वह 1937, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना कैप्टन सलमा किस ट्रेजेडी पर मबनी था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है भोपाल गैस हादसा पर, यानी जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसी पर ये मबनी जो है इनका कैप्टन सलमा ड्रामा अफसाना था इनका। अगला सवाल है सरदार जी किस सेगा में बयान हुआ है। तो सवाल नंबर 64 का जो सही जवाब है वो है वाहिद हाजिर, वाहिद हाजिर, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। टेढ़ी लेन की पतलून किसका अफसाना है। टेढ़ी लेन की पतलून किसका अफसाना है। तो दोस्तों ये ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है, याद रखिएगा, बहुत ही काम आएगा। अगला सवाल है मंदरजा झैल में से कौन सा अफसानवी जोड़ा नहीं है। तो दोस्तों सवाल नंबर 66 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी 12 घंटे अजंता नीली साड़ी अलिफ लैला इनकलाब 4 दिल 4 राहें, इसका जो सही जवाब है ये है, ये अफसानवी जोड़ा नहीं है। अगला सवाल है मुसाफिर की डायरी किसका सफ़रनामा है। डायरी का किसका सफ़रनामा है, यानी इसमें किसकी जो है यात्रा वृत्तांत को बयान किया गया है। तो सवाल नंबर 67 का जो सही जवाब है वो है ख्वाजा अहमद अब्बास, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है 3 पहिए एक पुराना टब और दुनिया भर का कचरा। 3 पहिए एक पुराना टब और दुनिया भर का कचरा किसका अफसाना है। तो दोस्तों सवाल नंबर 68 का जो सही जवाब है वह ख्वाजा अहमद अब्बास। अगला सवाल है ख्वाजा अहमद अब्बास का मंदरजा झैल में से कौन सा नावल नहीं है। तो सवाल नंबर 69 का जवाब आपको देना है। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी आगे समंदर है, ये नावल इनका नहीं है। अगला सवाल है तबयीनुल कलाम किस किताब की तफसीर है। तो दोस्तों तबयीनुल कलाम जो है ये किसकी तफसीर है, ये है इंजील की तफसीर, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है तबयीनुल कलाम की इशाअत कब हुई, यानी इसकी जो है इशाअत इसका प्रकाशन किस सन में हुआ। तो दोस्तों
62 ईस्वी में तबयीनुल कलाम की इशाअत हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है तबयीनुल कलाम कितनी जिल्दों में है? तबयीनुल कलाम कितनी जिल्दों में है? तो दोस्तों ये 2 जिल्दों में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है खुतबात अहमदिया किस किताब के जवाब में लिखी गई? सवाल नंबर 73 का जो सही जवाब है वह है लाइफ ऑफ मोहम्मद, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। खुतबात अहमदिया की कितनी जिल्दें हैं? तो दोस्तों खुतबात अहमदिया 4 जिल्दों में, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। तफसीर क़ुरआन व हुवल हुदा फ़िल क़ुरआन कितनी जिल्दों में है? तफसीर क़ुरआन व हुवल हुदा फ़िल क़ुरआन कितनी जिल्दों में है? सवाल नंबर 75 का जो सही जवाब है वो है 7, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है तफसीर क़ुरआन व हुवल हुदा फ़िल क़ुरआन किस सूरत पर ख़त्म होती है? तो दोस्तों सवाल नंबर 76 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी सूरह ताहा। अगला सवाल है जामे जम में कितने बादशाहों के हालात दर्ज हैं? जामे जम में कितने बादशाहों के हालात दर्ज हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है, यानी 43 बादशाहों के हालात जामे जम के अंदर जमा हैं। आसारुस सनादीद में कितनी तस्वीर का इस्तेमाल किया है? यानी आसारुस सनादीद जो है इसमें कितनी तस्वीरों को बरूए कार लाया गया है? तो सवाल नंबर 78 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी 130 तस्वीरों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। आसारुस सनादीद में किसकी फ़ारसी मंजूम तकरीज़ है? 79 का सही जवाब होना चाहिए, आपको बताना है नवाब ज़ियाउद्दीन लोहार। चलिए इसका जो सही जवाब है वह है नवाब ज़ियाउद्दीन लोहारू की, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आसारुस सनादीद के कितने अबवाब हैं? यानी इसमें कुल कितने बाब हैं? तो दोस्तों इसमें कुल 4 बाब हैं। कितने बाब हैं? 4 बाब हैं, 4 खंड हैं। अगला सवाल है आसारुस सनादीद में कितने मशाहिर का ज़िक्र है? सवाल नंबर 81 का जो सही जवाब है वह है 117, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है मरसिए दिल्ली किसने लिखा? तो दोस्तों मरसिए दिल्ली, यानी सवाल नंबर 82 का आपको जवाब देना है। तो मरसिए दिल्ली जो है हाली ने लिखा है। मरसिए दिल्ली जो है ये किसने लिखा है? हाली ने लिखा है। चलिए अगला सवाल है हाली को किसकी फरमाइश पर शमसुल उलमा का खिताब मिला था? तो हाली को जो है कर्नल हालराइट की फरमाइश पर शमसुल उलमा का खिताब दिया गया था। अगला सवाल है हाली को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला था? यानी सवाल नंबर 84 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी 1904 में। अगला सवाल है सवान उमरी हकीम नासिर खुसरू किसकी तसनीफ़ है? तो सवाल नंबर 85 का जो सही जवाब है वह है हाली, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। हाली ने कुल कितने मरासी लिखे हैं? यानी इनके मरासी की तादाद कुल कितनी है? तो हाली ने कुल मिलाकर के 5 मरसिए लिखे हैं, तो इनके मरासी की तादाद 5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हाली ने मलका विक्टोरिया का मरसिया किस फॉर्म में लिखा है? सवाल नंबर 87 देखिए। चलिए इन्होंने जो मरसिया लिखा है मलका विक्टोरिया का मरसिया वो है तरकीब बंद में, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हाली ने गालिब का मरसिया किस फॉर्म में लिखा? तो दोस्तों गालिब का मरसिया भी इन्होंने तरकीब बंद में लिखा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है हाली ने महमूद ख़ान का मरसिया किस फॉर्म में लिखा है? तो दोस्तों इन्होंने महमूद ख़ान का जो मरसिया लिखा है वो मुसद्दस की हैत पर लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। अगला सवाल है मरसिया गालिब में हाली ने गालिब को क्या कहा है?
سوال نمبر 90 دیکھیے، پوچھا جا رہا ہے غالب کو حالی نے مرثی غالب میں کیا کہا ہے؟ تو دوستو انہوں نے غالب کو بلبل ہند کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ بلبل ہند کہا ہے، یعنی آپشن نمبر 3 بالکل صحیح جواب، 2 بالکل صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے نواب محسن الملک کا مرثیہ حالی نے کتنے بند میں لکھا ہے؟ تو سوال نمبر 91 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 1، یعنی آپشن نمبر 1 ہی صحیح جواب ہے اور 1 بند میں لکھا ہے۔ محمد حسین کے والد کا انتقال کب ہوا؟ سوال نمبر 92 کا جواب آپ کو دینا ہے۔ چلیے اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، 1857۔ اگلا سوال ہے انجمن پنجاب کا قیام کب ہوا؟ انجمن پنجاب لاہور کا قیام کب ہوا؟ تو سوال نمبر 93 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 3، یعنی 1865 میں۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد کو انجمن پنجاب کا سیکریٹری کب بنایا گیا؟ یعنی سوال نمبر 94 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 1867۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ تو دوستو ان کو جو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا وہ 1887 میں ملا تھا، حالی کو 1904 میں، محمد حسین آزاد کو 1887 میں۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد کا انتقال کب ہوا؟ محمد حسین آزاد کا انتقال کب ہوا؟ 1877، 1857، 1837، 1910۔ تو دوستو ان کا جو انتقال ہوا تھا 1910 میں ہوا تھا، یعنی آپشن نمبر 4 بالکل صحیح جواب۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد کی نئے رنگ خیال کب شائع ہوئی؟ تو دوستو 1880 میں ان کی نئے رنگ خیال شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد کا مجموعہ نظم آزاد کب شائع ہوا؟ یعنی سوال نمبر 99 کا جو صحیح جواب ہے وہ 1896، یعنی آپشن نمبر 4 صحیح جواب۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد کا ڈرامہ اکبر کب شائع ہوا؟ آخری سوال ہے آج کا، تو ساتھیوں سوال نمبر 100 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے 1922، یعنی آپشن نمبر 4 بالکل صحیح جواب ہے۔ چلیے ساتھیوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ سے آخری درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا تاخیر سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔